ایک زمانے کی بات ہے، دور دراز پہاڑوں اور سرسبز میدانوں کے درمیان ایک بہت بڑی اور خوشحال سلطنت آباد تھی۔ اس سلطنت کا بادشاہ نہایت انصاف پسند اور رحم دل تھا۔ رعایا اس سے بے حد محبت کرتی تھی، مگر اس کی زندگی میں ایک ایسی کمی تھی جس نے اس کی ساری خوشیاں ادھوری کر رکھی تھی۔ بادشاہ اور ملکہ کی شادی کو کئی سال گزر چکے تھے، لیکن ان کے گھر اولاد نہ تھی۔ دونوں دن رات اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، صدقہ و خیرات کرتے اور ہر وقت ایک نیک اولاد کی آرزو میں رہتے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول کر لیں اور کئی برسوں بعد ان کے گھر ایک خوبصورت بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ پورے محل میں خوشیوں کا سما چھا گیا۔ سلطنت کے ہر کونے میں جشن منایا گیا اور غریبوں میں کھانا اور کپڑے تقسیم کیے گئے۔ وقت گزرتا گیا، ننھا شہزادہ آہستہ آہستہ بڑا ہونے لگا۔ جب وہ جوان ہوا تو بادشاہ نے اسے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے دوسرے ملک بھیج دیا تاکہ وہ علم، حکمت اور حکومت کرنے کے طریقے سیکھ سکے۔ کئی برس بعد ایک دن شہزادہ اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس اپنی سلطنت لوٹ آیا۔ اس کی آمد پر پوری محل کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا۔ رعایا اپنے شہزادے کو دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھی۔ اسی شام بادشاہ نے شہزادی کو اپنے پاس بلایا۔ بیٹے، میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ سلطنت کی ذمہ داری تم سنبھالو۔ 2 ماہ بعد تمہاری تاج پوشی ہوگی اور تم اس سلطنت کے نئے بادشاہ بن جاؤ گے۔ شہزادی نے ادب سے سر جھکایا، مگر چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولا، ابا حضور، میں تاج پہننے سے پہلے اپنی رعایا کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ لوگ کیسے زندگی گزار رہے ہیں، انہیں کن مشکلات کا سامنا ہے۔ اگر میں ان کے حالات جانے بغیر بادشاہ بن گیا تو شاید میں ایک اچھا حکمران نہ بن سکوں۔ بادشاہ اپنے بیٹے کی بات سن کر خوش ہوا۔ بہت اچھا خیال ہے، میں وزیر اور سپاہیوں کا ایک دستہ تمہارے ساتھ بھیج دیتا ہوں۔ لیکن شہزادی نے فوراً جواب دیا، نہیں ابا حضور، اگر لوگ جان گئے کہ میں شہزادہ ہوں تو کوئی بھی مجھے اپنے اصل حالات نہیں بتائے گا۔ میں ایک عام مسافر بن کر جانا چاہتا ہوں۔ کافی سوچنے کے بعد بادشاہ نے اجازت دے دی۔ اگلی صبح شہزادہ سادہ لباس پہن کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور محل سے روانہ ہو گیا۔ وہ مختلف گاؤں، قصبوں اور بستیوں سے گزرتا رہا۔ راستے میں لوگوں سے باتیں کرتا، ان کے مسائل سنتا اور دل ہی دل میں سوچتا کہ اگر وہ بادشاہ بنا تو ان کی زندگی کیسے بہتر بنائے گا۔ چلتے چلتے وہ اپنی سلطنت کے آخری کنارے تک پہنچ گیا۔ شام ڈھلنے لگی، پھر اندھیرا چھا گیا۔ چاروں طرف گھنا جنگل تھا۔ شہزادے نے سوچا، رات کے وقت سفر کرنا مناسب نہیں، بہتر ہے یہیں آرام کر لیا جائے۔ اس نے اپنے گھوڑے کو ایک درخت کے قریب کھول دیا تاکہ وہ گھاس چر سکے، جبکہ خود ایک بڑی درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ ابھی اسے بیٹھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ اچانک جھاڑیوں میں زور سے سرسراہٹ ہوئی۔ ایک خوفناک شیر جھاڑیوں سے نکل آیا۔ شہزادے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ اس نے فوراً دوڑ لگا دی اور قریب موجود ایک اونچی درخت پر چڑھ گیا۔ شیر نیچے کھڑا غصے سے دھاڑی مارنے لگا۔ وہ مسلسل درخت کے نیچے چکر لگاتا رہا، جیسے اسی انتظار میں ہو کہ شہزادہ نیچے اتری اور وہ اسے اپنا شکار بنا لے۔ پوری رات شہزادہ درخت پر بیٹھا کانپتا رہا۔ آخرکار صبح کی ہلکی روشنی نمودار ہونے لگی۔ اتنے میں ایک ہرن کا ننھا بچہ جنگل کے دوسرے کنارے سے گزرا۔ شیر نے جیسے ہی اسے دیکھا، فوراً شہزادے کو چھوڑ کر ہرن کے پیچھے دوڑ پڑا۔ یہ موقع دیکھ کر شہزادہ جلدی سے درخت سے نیچے اترا۔ وہ اپنے گھوڑے کی طرف بھاگا، مگر گھوڑا وہاں موجود نہیں تھا۔ شاید وہ رات کے اندھیرے میں کہیں بھاگ گیا تھا۔ اب شہزادہ اکیلا تھا۔ اس کے پاس نہ کھانے کو کچھ تھا، نہ پانی، نہ ہی سواری۔ وہ کئی گھنٹوں تک جنگل میں پیدل چلتا رہا۔
प्यास से उसका गला खुश्क होने लगा। इसी दौरान उसे दूर धुएं की हल्की सी लकीर दिखाई दी। जाए, शायद वहां कोई रहता हो। ये सोचकर वो तेजी से उस तरफ बढ़ा। चंद ही लम्हों बाद वो एक पुरानी सी झोपड़ी के सामने खड़ा था। अंदर अजीब खामोशी थी। वहां कोई इंसान मौजूद नहीं था, सिर्फ एक पत्थर का निहायत खूबसूरत मुजस्समा रखा था। शहजादा अंदर आया, एक घड़े से पानी पिया और सुकून का सांस लिया। फिर उसकी नजर दोबारा उस मुजस्समे पर गई। वो बेइख्तियार बोला, कितना खूबसूरत मुजस्समा है, काश ये बोल सकता। अचानक एक आवाज आई। मैं बोल भी सकता हूँ और तुम्हारी बात सुन भी सकता हूँ। शहजादा चौंक कर खड़ा हो गया। उसने खुद से कहा, शायद मुझे वहम हुआ है। लेकिन चंद लम्हों बाद दोबारा वही आवाज गूंजी। ये तुम्हारा वहम नहीं, मैं वाकई तुमसे बात कर रहा हूँ। अब शहजादा खौफजदा हो गया। उसकी नजरें आहिस्ता आहिस्ता उसी मुजस्समे पर जाकर रुक गईं। क्या तुम बोल रहे हो? मुजस्समा आहिस्ता से बोला। हाँ, मैं ही बोल रहा हूँ। शहजादा हैरत से चंद कदम पीछे हट गया। ये कैसे मुमकिन है? इसी लम्हे झोपड़ी का दरवाजा खुला और एक बूढ़ा शख्स अंदर दाखिल हुआ। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी और सादा लिबास देखकर अंदाजा होता था कि वो एक दरवेश सिफ्त इंसान है। बूढ़े ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, तुम कौन हो? शहजादी ने अपनी असल शनाख्त छुपाते हुए जवाब दिया, मैं एक आम मुसाफिर हूँ, रास्ता भटक गया था इसलिए यहाँ आ गया। फिर उसने घबराहट से मुजस्समे की तरफ इशारा किया। बाबा, ये मुजस्समा बोल रहा है। मुझे लगता है यहाँ जरूर कोई काला जादू है। बूढ़ा शख्स खामोशी से मुस्कुराया। नहीं बेटा, ये कोई आम मुजस्समा नहीं, ये वाकई एक जिंदा इंसान है। शहजादा हैरत से बोला, ये कैसे हो सकता है? एक जिंदा इंसान पत्थर कैसे बन सकता है? बाबा ने गहरा सांस लिया। कई साल पहले मैं जंगल में लकड़ियां जमा करने गया था। वहां मुझे ये नौजवान शदीद जख्मी हालत में मिला। मैं उसे अपनी झोपड़ी में ले आया। उस वक्त सिर्फ उसका एक हाथ पत्थर का बना था। अगले दिन दूसरा हाथ भी पत्थर बन गया, फिर दोनों पांव, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका पूरा जिस्म पत्थर बनता चला गया। शहजादा हैरान रह गया। नहीं, मैं इस बात पर यकीन नहीं कर सकता। बाबा ने मुजस्समे की तरफ देखा। अगर यकीन नहीं आता तो इसकी कहानी उसी की जबान से सुन लो। शहजादा खामोशी से मुजस्समे के सामने जा खड़ा हुआ। अगर तुम वाकई इंसान हो तो मुझे बताओ, तुम्हारे साथ आखिर हुआ क्या था? मुजस्समे ने अपनी नम आंखों से शहजादी की तरफ देखा, एक गहरा सांस लिया और आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिंदगी की सबसे दर्दनाक कहानी सुनाना शुरू कर दी। मुजस्समे ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद एक ठंडी आह भरी। उसकी आंखों में बरसों का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। मेरी कहानी सुनकर शायद तुम्हें यकीन आ जाए कि मैं वाकई एक जिंदा इंसान हूँ। शहजादा खामोशी से उसके सामने बैठ गया, जबकि बाबा भी एक तरफ बैठकर सब कुछ सुनने लगा। मुजस्समा आहिस्ता आहिस्ता बोलने लगा। मैं भी कभी एक बड़ी सल्तनत का शहजादा था। मेरी माँ मुझसे बेहद मोहब्बत करती थी, मगर जब मैं अभी जवान ही हुआ था तो वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। उनके जाने के बाद मेरे वालिद बहुत तन्हा हो गए। कुछ अरसे बाद उन्होंने एक दूसरी औरत से शादी कर ली। वो चंद लम्हों के लिए खामोश हुआ। उस औरत के पहले शौहर से 2 बेटे थे। शुरू शुरू में वो मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक करते थे, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उनकी नफरत बढ़ती गई। शहजादा पूरी तवज्जो से उसकी बातें सुन रहा था। मुजस्समा दोबारा बोला। मेरे वालिद ने एक दिन ऐलान किया कि वो जल्द ही मुझे सल्तनत का नया बादशाह बनाने वाले हैं। यही बात मेरी सौतेली माँ और उसके दोनों बेटों को बर्दाश्त ना हुई। वो चाहते थे कि तख्त पर उनमें से कोई बैठे, मैं नहीं। उन्होंने खुफिया तौर पर काले जादूगरों से मदद ली। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया। मुझे बुरी तरह जख्मी किया गया। फिर मेरे ऊपर ऐसा काला जादू किया गया कि मेरा जिस्म आहिस्ता आहिस्ता पत्थर में बदलने लगा। बाबा ने अफसोस से सर झुका लिया। मुजस्समे की आवाज भारी हो गई।
सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने मेरे वालिद को भी कत्ल कर दिया और सबको ये झूठ बताया कि बादशाह अचानक बीमारी से इंतकाल कर गए हैं। इसके बाद उन्होंने पूरी सल्तनत पर कब्जा कर लिया। शहजादे की मुट्ठियां गुस्से से भिंच गईं। ये बहुत बड़ा जुल्म है। मुजस्सिमा तल्ख मुस्कुराहट के साथ बोला, मुझे मरने के लिए जंगल में फेंक दिया गया था। शायद अल्लाह ने मेरी जान बचानी थी, इसीलिए बाबा मुझे यहाँ ले आए। शहजादे ने पूछा, क्या इस काले जादू का कोई इलाज नहीं? है, मगर बहुत मुश्किल। काला जादू उसी वक्त खत्म होगा जब मेरी सौतेली माँ और उसके दोनों बेटे अपने अंजाम को पहुंचेंगे। जैसे ही वो तीनों खत्म होंगे, मैं दोबारा इंसान बन जाऊंगा। फिर उसने अफसोस से कहा, लेकिन इस जादू की एक मुद्दत भी है। मुझे पत्थर बनते हुए तकरीबन 3 साल हो चुके हैं। अब सिर्फ 2 महीने बाकी हैं। उसने अपनी पत्थर बनी हुई टांगों की तरफ देखा। देख रहे हो, मेरा पूरा जिस्म पत्थर बन चुका है। सिर्फ मेरी आंखें और मेरी जुबान अभी जिंदा हैं। अगर 2 महीने गुजर गए तो ये भी पत्थर बन जाएंगी और फिर मैं हमेशा के लिए एक बेजान मुजस्समा बन जाऊंगा। झोंपड़ी में खामोशी छा गई। शहजादा कुछ देर तक सोचता रहा, फिर मजबूत लहजे में बोला, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुजस्सिमा फौरन बोला, नहीं, तुम नहीं जानते वो कितनी ताकतवर हैं। उनके पास बेशुमार सिपाही हैं और काले जादू के माहिर भी। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं। मैं इस जंगल में मरने वाला था। अगर अल्लाह ने मुझे यहाँ पहुंचाया है तो जरूर इसमें कोई हिकमत है। शायद मेरी किस्मत में तुम्हारी मदद लिखती गई है। बाबा ने भी शहजादी की तरफ देखा। बेटा, ये रास्ता बहुत खतरनाक है। खतरनाक जरूर है बाबा, मगर नामुमकिन नहीं। मुजस्सिमे की आंखों में बरसों बाद उम्मीद की एक किरण जाग उठी। उसने अपनी सल्तनत के बारे में हर बात शहजादे को बता दी। महल कहाँ वाक़े है, खुफिया रास्ते कौन सी हैं, वजीर आजम कौन है, कौन वफादार है और कौन गद्दार, सब कुछ। आखिर में उसने महल तक पहुंचने का रास्ता भी समझा दिया। शहजादे ने सारी बातें गौर से याद कर ली। अगली सुबह वो बाबा और मुजस्सिमे से इजाजत लेकर वापस अपनी सल्तनत की तरफ रवाना हो गया। कई घंटों के सफर के बाद वो अपने महल पहुंचा। इधर महल में हर शख्स परेशान था। बादशाह और मलिका पूरी रात अपनी बेटी की वापसी का इंतजार करते रहे थे। जैसे ही शहजादा महल में दाखिल हुआ, मलिका दौड़कर उसके पास आई। बेटे, तुम कहाँ थे? हमें कितनी फिक्र हो रही थी। बादशाह ने भी सख्त लहजे में पूछा। तुमने कहा था शाम तक वापस आ जाओगे, फिर एक दिन बाद क्यों आए हो? शहजादे ने उन्हें जंगल का सारा वाकया सुनाया। शेर, दरख्त, घोड़े का गुम हो जाना, झोंपड़ी, बाबा और वो बोलता हुआ मुजस्सिमा। बादशाह और मलिका हैरत से सब कुछ सुनते रहे। आखिर में शहजादा बोला, अब्बा हुजूर, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं इस शहजादे की मदद करूंगा। मलिका फौरन बोल उठी, नहीं, तुम हमारे इकलौते बेटे हो, तुम इतने खतरे वाले काम में नहीं जाओगे। बादशाह ने भी कहा, सिर्फ 2 महीने बाद तुम्हारी ताजपोशी है। ऐसे खतरनाक सफर पर जाना मुनासिब नहीं। लेकिन शहजादा अपने फैसले पर कायम रहा। अब्बा हुजूर, अगर एक इंसान मेरी मदद का मुंतजिर हो और मैं सिर्फ अपनी हिफाजत की खातिर उसे मरने के लिए छोड़ दूं, तो मैं कभी एक अच्छा बादशाह नहीं बन सकता। बादशाह खामोश रहे। शहजादा दोबारा बोला, आप दोनों ने ही मुझे हमेशा ये सबक दिया है कि ताकतवर वो नहीं जो सिर्फ अपने लिए जिए, बल्कि ताकतवर वो है जो दूसरों की मदद करे। अगर मैं एक बेगुनाह इंसान की जान ना बचा सका, तो फिर इस ताज का भी क्या फायदा जो 2 महीने बाद मेरे सर पर रखा जाएगा। ये सुनकर मलिका की आंखों में आंसू आ गए। बादशाह ने चंद लम्हे सोचा, फिर आहिस्ता से मुस्कुराए।
आज तुमने साबित कर दिया कि तुम वाकई इस सल्तनत के बादशाह बनने के लायक हो। जाओ, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। अगली सुबह शहजादा अपने सफर पर रवाना हो गया। कई दिनों की सफर के बाद वो उस जालिम सल्तनत की सरहद पर पहुंच गया। दूर एक अजीम शान महल सूरज की रोशनी में चमक रहा था। वो जानता था कि इसी महल के अंदर वो लोग रहते हैं जिन्होंने एक बेगुनाह शहजादी की जिंदगी तबाह कर दी थी। उसने गहरा सांस लिया और महल की तरफ कदम बढ़ा दिए। वो महल की अजीम दरवाजे के सामने खड़ा था, लेकिन अगले ही लम्हे उसके जहन में एक सवाल गूंजा। मैं एक आम मुसाफिर बनकर इस महल के अंदर दाखिल कैसे होऊंगा? अंदर जाना आसान नहीं था और उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस दरवाजे के पीछे उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक इम्तिहान उसका इंतजार कर रहा है। शहजादा महल के अजीम दरवाजे के सामने खड़ा था। उसे मालूम नहीं था कि इस दरवाजे के पीछे सिर्फ दुश्मन ही नहीं, बल्कि एक ऐसा राज उसका इंतजार कर रहा था जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। आखिर वो महल के अंदर कैसे दाखिल होगा? क्या वो पत्थर बने शहजादे को बचा सकेगा? ये जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले हिस्से का। अगले जुमे को इस कहानी का अगला हिस्सा अपलोड किया जाएगा।